So today we are going to start with the final lesson for CLAT 2020, which is course of action and cause and effect relationship. Okay. So the first topic which we are going to take is cause and effect relationship. We'll directly, so these topics were to be covered as per the schedule. These topics were to be covered in the earlier classes. Okay, na? But I've kept them intentionally for this class because they are very small topics. Firstly, they do not require much of logical implications, or they do not have that much of confusion. They do not create that much of confusion. And thirdly, they are not direct parts of CLAT syllabus, right? They may be useful for LSAT or IELTS papers. ठीक है, वो भी आप लोग दे रहे होंगे I suppose. तो इसलिए we are doing these topics. ठीक है. So firstly, let's come to cause and effect relationships. चलो. अच्छा, what? हाँ. So the pattern of question will be that you will be given two statements. ठीक है. और उन दो statements में there may or may not be a relationship of cause or effect. ठीक है ना? If we take it very positively, there will be a relation of cause and effect between both these statements, जहाँ पे one will be cause and the other one will be its immediate effect. ठीक है? Immediate effect. ठीक है? अब वो कोई भी हो सकता है, cause कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में से, और effect भी कोई भी हो सकता है. ठीक है? And if there is no relation between those two statements, direct and immediate relationship of cause and effect, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा that both the given statements have cause and effect relationship with any other statement not given in the question. ठीक है? उसके बाद हमारी जो पिक्चर है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी. ठीक है? इसमें in case of first condition will be done easily with the question. इन केस ऑफ सेकंड थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. ठीक है? तो वो हम देखेंगे कि हाउ डू वी सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है? चलो. Situation 1. When both the statements have cause and effect relationship, you just have to find which statement is the cause and which is the effect. तो इसमें सिंपल चीज करनी है कि कोई भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में सो या देयरफॉर लगा के देखना है. ठीक है? Very simple. You have to put so or therefore between those two statements. You have to connect those statements with so or therefore. ठीक है ना? So the one before so or therefore is the cause and the other after is the effect. जैसे कि I studied for the exam, I cleared the exam. ये दो statements हैं. ठीक है? तो इसमें cause कौन सा होगा और effect कौन सा होगा? तो we'll put so between these two. ठीक है? जैसे I studied for the exam, therefore I cleared the exam. ठीक है? तो इसमें अब लॉजिकल सेंस बैठ रहा है बिल्कुल कि I studied for the exam, therefore I cleared the exam. So which one is the cause? The first statement. I studied for the exam is the cause and I cleared the exam is the effect of that cause. ठीक है? जैसे there is a sharp decline in the production of oil seeds this year. ठीक है? The government has increased import quantum of edible oil. अब इसमें कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, we'll see. इसको पहले रखते हैं. ठीक है? फिर लगाते हैं हम so there is a sharp decline in the production of oil seeds. क्या import quantum बढ़ाने से प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा? Yes or no? Will there be a decline by importing too much of decline in production by increasing the import quantum? Bhumika? No, sir. No? ठीक है. Anyone else with yes? कि सर इंपोर्ट बढ़ाने से हाँ प्रोडक्शन, इंपोर्ट क्वांटम बढ़ाने से प्रोडक्शन कम होगा. कोई है ऐसा जो यस बोल रहा है? चलो ठीक है, कोई नहीं है. गुड. तो अब इसके बाद में हम सो लगा के देखते हैं. ठीक है? सो इसको हटा देते हैं. ठीक है? So there's a sharp decline in the production of oil seeds this year.
therefore, yes, so the government has increased import quantum. Does this make sense, Dushyant? No, sir. No? चलो, और कोई with a no? Priyam, does this make sense? Yes, sir. It makes sense. अच्छा, contradictory answers. चलो, विहान, not available. Nukul, does this make sense? Yes, sir. Yes. दुष्यंत, देखो इस चीज को समझो, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो कि if there has been decrease in production or decline in production, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा तो अवेलेबिलिटी कम होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल इंक्रीज द इंपोर्ट क्वांटम, कि भाई पहले आप 100 टन इंपोर्ट कर सकते थे, नाउ यू कैन इंपोर्ट 200 टन. गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया. क्यों बढ़ाया? क्योंकि प्रोडक्शन कम है. आई बात समझ में? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज जो आपकी है उसको आपको अप्लाई करना है. ठीक है, इन दोनों में, कोर्स ऑफ एक्शन में भी और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी. ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू कमर्शियल कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी. कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी causes a lot of pollution. People are getting high electricity bills. अच्छा, आप बताओ इसमें कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है? डू इट योरसेल्फ. नीरद एंड कृतिका. नीरद फर्स्ट स्टेटमेंट, कृतिका सेकंड स्टेटमेंट. एंड चंचल थर्ड स्टेटमेंट. डन. चलो फर्स्ट Sir, third one is the cause. फर्स्ट से पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट. नीरज. First one is effect. First one is the effect. First one is the effect of this one or this one? The second. The second one. Second one. Yes. Okay. Kritika. Sir, second one is the cause and the first one is the effect. ठीक है. चंचल. Sir, third one is the cause. Third one is the cause. पक्का है? हो सकता है ना भी हो. नहीं sir, third one is the cause and Third one is first the cause. is the effect. चलो first is the effect. ठीक है. और second का क्या चीज है? Second. चंचल, the second come into picture. Not related. ठीक है, अभी देखते हैं. और कोई? भाई नीरज और कृतिका का बोलना है that second is the cause. Second is the cause and first is the effect. ठीक है, ऐसा नीरज और कृतिका का बोलना है. How many of you agree? मैसेज करो, मैसेज. Guys, come on, जल्दी. How many of agree with this statement कि second is the cause and first one is the effect? Priyam agrees. Others? Bhumika? I agree. Yes sir, I agree. I agree. I agree. I agree. ठीक है भाई. Most of you agree. ठीक है. चलो अब देखते हैं इसमें. देखो, people are looking for alternative to commercial coal generated electricity. अब मैं, मतलब हम लोग, people, कॉमन मैन, ठीक है, हम कोल जनरेटेड जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, एक एक वर्ड को पढ़ो. साहिल सेज थर्ड इज द कॉज, फर्स्ट इज द इफेक्ट. ठीक है, एक एक चीज को पढ़ो. ऑल्टरनेटिव टू विच कमर्शियल कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है, पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट. ठीक है, अब आपके घर में आपके पेरेंट्स जब बिल आता है, यू गेट ह्यूज बिल्स. ठीक है, मान लो 18,000 20,000 का बिल आ गया, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पेरेंट्स यही बोलेंगे कि यार सोलर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, अगर मिल जाए तो लगा लेते हैं. लोग सोलर पैनल क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है. राइट? आ रहा है ना?
तो इसीलिए ये हो गया सही। थर्ड इज द कॉज, थर्ड विल डेफिनेटली बी द कॉज। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होता ना, गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर कमर्शियल कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पीपल आर गेटिंग हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता। गॉट इट नीरज एंड कृतिका? थर्ड वन में इट इज अबाउट पीपल, राइट? यू टू रीड वेरी केयरफुली, इट इज अबाउट पीपल एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हाई बिल आएगा तभी तो वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना। आज मैं घर पे बैठा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है थर्मल पावर प्लांट पे कितना पोल्यूशन हो रहा है? आर पीपल कंसर्न अबाउट पोल्यूशन? एनीवेज कॉमन मैन, जनरल पीपल, क्या वो इस कारण से ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि भाई पोल्यूशन बहुत हो रहा है तो हम सोलर एनर्जी लगाएंगे? जनरली कॉमन सेंस के साथ हम सोचते हैं अगर, तो इस कारण से तो डेफिनेटली दे वोंट स्पेंड 2 lakhs 3 lakhs फॉर सोलर एनर्जी, राइट? सोलर पैनल्स, राइट? सो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन, दिस कैन नॉट बी कॉज फॉर पीपल लुकिंग। ठीक है, दिस कैन बी अ कॉज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट होती यहाँ पे तो इट कुड हैव बीन अ कॉज। मी गवर्नमेंट बोल रही, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते, ये क्या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते कोई, तो दिस कुड हैव बीन अ कॉज। ठीक है ना, आई बात समझ में? और कोई जिसको नहीं समझ में आया ये एग्जाम्पल? विहान को नहीं समझ में आया? ठीक है, और कोई? तो जैसे पॉल्यूशन होगा तो सर मतलब लोगों को दिक्कत भी तो होगी, अगर सब जगह धुआं धुआं होएगा बाहर निकलने में वगैरह वगैरह। देखो मैंने क्या बोला, इट शुड बी एन इमीडिएट कॉज, राइट? इट शुड बी एन इमीडिएट कॉज, राइट? वो होना चाहिए। ये इमीडिएट कॉज है क्या कि पॉल्यूशन होगा, लोगों को दिक्कत होगी? ये इमीडिएट कॉज थोड़ी है। ठीक है, ये इमीडिएट कॉज नहीं है ना। सेकंड वाला ऑप्शन इस चीज का इमीडिएट कॉज नहीं कि लोग ऑल्टरनेटिव ही ढूंढ रहे हैं। अगर इतना ही इमीडिएट कॉज होता तो अब तक सब लगा चुके होते, पॉल्यूशन तो बहुत हो रहा है। अब तक लोग गाड़ियों के भी जो है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ चुके होते, ऑटोमोबाइल के भी, है ना? तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि इमीडिएट कॉज ये नहीं है। इमीडिएट कॉज क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि लोगों को किस चीज से फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है पोल्यूशन से, ठीक है ना, एक्टिविस्ट को पोल्यूशन से फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों को फर्क पड़ता है? कभी हमारे घर में कभी भी कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर प्लांट से होने वाले पोल्यूशन की बात हुई है घर में? कभी पेरेंट्स ने कभी जिक्र किया इस बात का? उनको तो मतलब इतना पता भी नहीं होगा कि कितना पोल्यूशन वहां पे होता है ना? उनको ये भी आइडिया नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, तो दिस कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन, ये कॉज। ठीक है, इसीलिए सेकंड वाला कॉज है। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो घर वाले बात करते हैं यार बिल बहुत आ रहा है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है ना? तो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन, राइट? विहान गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 2, व्हेन गिवन स्टेटमेंट्स डू नॉट हैव कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, तब क्या होगा? Sir, we have to see the question as third person only. हाँ exactly, we have to see the question as third person only. नीरज, we have to analyze कि भाई जो भी आदमी ये कॉज और इफेक्ट दे रहा है उसमें कॉमन सेंस हमें अपना लगाना है कि भाई क्या ये उस हिसाब से बैठ सकता है। ठीक है ना, हम थर्ड पार्टी हैं, हमें कॉमन सेंस लगाना है क्या ये बैठ सकता है थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली। ठीक है, रीजनेबल प्रूडेंट मैन, थर्ड पर्सन भी नहीं, ठीक है, एन इनविजिबल पर्सन हु इज अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन और वुमन फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, बहुत इजी था ये तो, कि भाई सो देयरफॉर लगाओ और थोड़ा सा लॉजिक लगा के कॉमन सेंस लगा के देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज सिचुएशन 2, वेयर गिवन स्टेटमेंट डू नॉट हैव कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तब क्या होगा? या तो वो इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे किसी चीज के, किसी थर्ड स्टेटमेंट के इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे, ठीक है, थर्ड इफेक्ट के, या फिर वो इफेक्ट होंगे किसी इंडिपेंडेंट कॉजेज के। यानी कि इसमें क्या है कि वो किसी अलग अलग दो इफेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग कॉजेज हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट, ये खुद कॉजेज हैं, ये खुद इफेक्ट्स हैं और इनके दोनों के अलग अलग कॉजेज हैं। ठीक है, बोथ द इफेक्ट्स हैव डिफरेंट कॉजेज। पहले वाले में बोथ द इफेक्ट्स, ये स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। ठीक है ना,
अब स्टेटमेंट में भी इफेक्ट ऑफ द सेम कॉज, दोनों स्टेटमेंट एक ही कॉज के इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, जब भी दूसरे एग्जाम में, क्लैट के अलावा दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस क्या होंगे, ए इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन बी इज द कॉज एंड ए इज द इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, fourth statement both the statements may be effects of independent causes, and fifth statement both the statements may be effects of the same cause, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन में 3 स्टेप्स लेने हैं उनके रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट। अब जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने बात की अभी जैसे वो कोल बेस्ड कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो क्या तीनों जो स्टेटमेंट्स थे, ठीक है, वो एक ही सब्जेक्ट से डील कर रहे थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, वो तीनों जो है इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आपस में एक रिलेशन है। सेकंड वाला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से डील ना करके वो किससे डील कर रहा है, वो पोल्यूशन से डील कर रहा है, राइट। हालांकि कोल से डील कर रहा है लेकिन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के पोल्यूशन से डील कर रहा है, राइट। अब इफ यस देन अप्लाई सो एंड देयरफॉर रिलेशनशिप। अगर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो किसी सेम सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ सो एंड देयरफॉर वाला जो अपना फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा फिट हो रहा है लॉजिकली, ठीक है, अंडरस्टूड। इफ नो देन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर ये एक सेम सब्जेक्ट के साथ नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स का अगर सेम सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यानी कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे मे बी इंडिपेंडेंट कॉजेस और दे मे बी इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, ठीक है ना। वो खुद या तो कॉज हो सकते हैं किसी इफेक्ट के, दोनों अलग अलग, या वो खुद इफेक्ट हो सकते हैं किसी अलग अलग कॉज के, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो, राइट। समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया, दुष्यंत समझ में आया, हाँ चलो गुड। साहिल, हाँ कौन आया भाई, वापस होता है सर, साहिल को नहीं आया, ठीक है। साहिल देखो 3 कंडीशंस हो सकती है, ये समझ में आया। अपने आप को अनम्यूट रखो, ठीक है, 2 मिनट के लिए। 3 कंडीशंस हो सकती है, समझ में आया कि कौन सी हो सकती है। हाँ। अब हमें आइडेंटिफाई करना है अगर कि कौन सी कंडीशन तीनों में से अप्लाई हो रही है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन टिक करूं। भाई आपस में तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों स्टेटमेंट की, अब क्या करें, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है, तो क्या करते हैं, जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं वील सी कि क्या दोनों सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो क्या दोनों उसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, या दोनों उसके कॉज हैं। समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, सो एंड देयरफॉर टेस्ट लगा के देखेंगे, ठीक है, लॉजिकली सो एंड देयरफॉर टेस्ट लगेगा उस सब्जेक्ट के साथ में दोनों का अलग अलग, तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो दोनों कॉज हैं या इफेक्ट हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अगर नहीं होता है तो हम क्या, अगर वो चीज नहीं हो रही है, ठीक है, कि भाई दोनों सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट्स निकालेंगे कि भाई इसका अलग सब्जेक्ट है, इसका अलग सब्जेक्ट है, राइट। और उन दोनों के बीच में सो एंड देयरफॉर टेस्ट लगा के देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट कॉज है या इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट कॉज है या इंडिपेंडेंट, देखो यस आता है अगर आंसर तो वो ये होंगे, ठीक है, ठीक है। यस नहीं आता है तो ये हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम आगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे स्टूडेंट एक्स ऑफ एबीसी स्कूल वाज रेस्टिकेटेड फॉर मिसबिहेवियर, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी स्कूल वाज ग्रेट, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, यहां का सब्जेक्ट है रेस्टिकेशन, यहां का सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। एक का सब्जेक्ट क्या है, रेस्टिकेशन है, एक का सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है। तो दोनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, अब दोनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं, तो अब हम देखेंगे कि कॉज या इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बैठती है इनकी अपने अपने सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो द स्टूडेंट ऑफ एक्स ऑफ एबीसी स्कूल वाज रस्टिकेटेड फॉर मिसबिहेवियर या बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर। ठीक है, तो मिसबिहेवियर तो हो गया कॉज और ये हो गया इफेक्ट, है ना। आई बात समझ में? नहीं आई? किसको नहीं आई मैसेज करो। एक तो साहिल को नहीं आई है, और कोई? जल्दी से बताओ किसको नहीं आई है, मैसेज करो। एक का मैसेज आया है, हाँ, विहान को भी नहीं आई है, साहिल को भी नहीं आई है। चलो देखते हैं हम, है ना, कि भाई स्टूडेंट एक्स है एबीसी स्कूल का, उसको रेस्टिकेट किया है मिसबिहेवियर के लिए। ठीक है, एक दूसरा, स्टूडेंट जो है एबीसी स्कूल के, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी थी। दो चीजें, दो स्टेटमेंट है, क्या दोनों आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं? पहले तो हमें ये देखना है, लॉजिकली सोचो, सब चीजों को छोड़ दो, जो भी ज्ञान अभी लिया उन सबको छोड़ दो, सिर्फ ये देखो क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपस में रखते हैं? नहीं रखते, कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट से रेस्टिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहा है और वो स्टूडेंट के रेस्टिकेशन। हाँ, स्कूल दोनों का एक ही है, स्कूल एक ही है, लेकिन चीजें अलग अलग है ना। तो वो किसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट रेस्टिकेशन की बात कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट किसकी बात कर रहा है? सेकंड स्टेटमेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। यानी कि ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये भी हम मानते हैं, समझ में आया ये भी हमें, कि भाई दोनों आपस में तो रिलेटेड नहीं है, प्लस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या ये सेम सब्जेक्ट से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। सेम सब्जेक्ट के इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सेम सब्जेक्ट के कॉज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। ना ये सेम सब्जेक्ट के कॉज हो सकते हैं, ना ये सेम सब्जेक्ट के इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है इंडिपेंडेंट कॉज, इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्या वो कॉज है या इफेक्ट है। ठीक है, चलो, ये कॉज है या इफेक्ट है किसी चीज का? रेस्टिकेशन होना किसी आदमी का, वो किसी चीज का कॉज है या किसी चीज का इफेक्ट होगा? नॉर्मली सोचेंगे, लॉजिकली, तो ये किसी चीज का इफेक्ट ही होगा। और ये तो बहुत इजी है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि ये मिसबिहेवियर का इफेक्ट है। राइट, आया समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो वो किसी चीज का कॉज होगा या इफेक्ट होगा? कॉज भी हो सकता है, इफेक्ट भी हो सकता है। राइट, कॉज किसका हो सकता है? बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया स्कूल वालों, ये क्या, सॉरी, इफेक्ट किस चीज का हो सकता है? बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, या बच्चों ने, अगर डांस का है तो बच्चों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली स्कूल से, आर्ट एंड कल्चर का है तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स वाज ग्रेट, तो इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कॉज किसका हो सकता है? कि बच्चों को, स्टूडेंट्स केम फर्स्ट इन द कंपटीशन, इस चीज का ये कॉज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये इमीडिएटली रिलेटेड किससे है? कॉज से है या इफेक्ट से है? अपना कॉज से रिलेटेड है, कि वो बच्चों को पढ़ाया अच्छा इसलिए परफॉर्मेंस उनकी अच्छी आई। ठीक है, मेजरली तो उसी से रिलेटेड है, ये एकदम नियरली जिसको बोलते हैं हम, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसलिए बोथ ऑफ दीज आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। आई बात समझ में? कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा? नीरद, नीरद को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। आवाज क्लियर नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट कॉज कैसे आएंगे? दोनों इंडिपेंडेंट कॉज आएंगे। मैसेज करो, मैसेज, आवाज क्लियर नहीं, आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। हाँ, विहान क्लियर है? चलो, भूमिका,
किसको क्लियर नहीं है वो मैसेज करो. टिल देन आई हाँ, हाउ दे विल बी इंडिपेंडेंट कॉज. दे आर नॉट कॉजेज, दे आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज. बोथ ऑफ देम आर इफेक्ट्स. ठीक है ना, ये दोनों इफेक्ट हैं. अगली बात समझ में, ये दोनों इफेक्ट हैं, कॉजेज नहीं है ये. ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ये अपने आप में इफेक्ट हैं किसी कॉज के. ठीक है, और किसी का नहीं आया है, मतलब ये सबको समझ में आ गया है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आमिर's मूवी earned 100 crores in very first week. ठीक है, और आमिर's मूवी was nominated for Oscars. ये खुद करोगे या मैं समझाऊं? खुद करो, पहले ऑप्शंस नोट करो. चलो, ऑप्शन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों में. फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट. दूसरा ऑप्शन, सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज द इफेक्ट. थर्ड ऑप्शन, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. Effects of same causes, same cause. Causes of same effect, causes of independent effects, and causes of same effects. 6 ऑप्शन हो गए. Causes of same effects, 6 ऑप्शन लिख लिए. चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. हो गया, कर लिया सबने? आंसर मैसेज करो जल्दी से अपना अपना. इफेक्ट ऑफ सेम कॉज, कॉज, ये सब पूरा लिख के मैसेज करना. सी मत करो ऐसे नकुल नकुल. Effects of independent causes, effect of same cause, effect of same cause, effect of independent cause, effect of same cause, independent cause, effect of same cause, and चलो ठीक है. independent causes, effects of independent causes. ठीक है ठीक है ठीक है. देखो अब हम शुरू करते हैं इसको लेना. जैसे सबको ये तो समझ में आ गया कि these both of these are effects, right?
ये तो हमें समझ में आ गया। अब किसका आया मैसेज? ट्विंकल, इफेक्ट ऑफ सेम कॉज। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं, सबको ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये है तो इफेक्ट्स ही। अब हमें ये देखना है कि सेम कॉज के हैं या अलग अलग कॉजेस के हैं। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि हम देखते हैं कि दोनों के कॉज क्या है, क्या हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले भाई 100 करोड़ की मूवी फर्स्ट वीक में 100 करोड़ अर्न किया है, तो द मूवी वुड बी वेरी गुड, कि मूवी अच्छी है इसलिए 100 करोड़ अर्न कर लिया। ये एक इसका कॉज हो गया अगर ये इफेक्ट है तो। और ऑस्कर के लिए अगर ये नॉमिनेट हुई है तो इसका क्या कॉज हो सकता है? मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी है इसीलिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। रैशनली सोचना है कि बाकी मूवीज होती हैं या नहीं होती, उससे हमें स्लम डॉग मिलियनेयर पे नहीं जाना है कि मूवी अच्छी है या नहीं, ऑस्कर मिल गया, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मूवी अच्छी होती है तो ऑस्कर में जाती है, और मूवी अच्छी होती है तो फर्स्ट वीक में 100 करोड़ कमाती है। मैं सलमान भाई की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल मूवीज की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों का जो कॉज है, इन दोनों का जो कॉज है वो सेम हुआ। क्या सेम हुआ? कि भाई दोनों मूवी अच्छी है देयरफॉर इट अर्नड, और मूवी अच्छी है इसलिए इट वेंट टू ऑस्कर्स। ठीक है, तुम बोल दो सर इरफान खान की भी अच्छी मूवीज आई हैं लेकिन उन्होंने तो 100 करोड़ नहीं कमाए। नॉर्मली जनरल लॉजिकल बात हो रही है। ठीक है, बॉलीवुड पे नहीं जाना है हमें, बॉलीवुड हॉलीवुड पे किसी पे नहीं जाना है, बात लॉजिक की नॉर्मली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? There has been a high increase in the incidents of atrocities against women in the city during past few months. ठीक है, और the police authority has been unable to nab the culprits who are committing the crime against women. ठीक है, करो। सॉल्व करो। चंचल says causes of same effect. ये कॉज हैं जिनका इफेक्ट सेम है। ठीक है, और कोई? सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। ठीक है, सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट कॉज है, सेकंड इफेक्ट है। कोई बोल रहा है सेकंड कॉज है, फर्स्ट इफेक्ट है। फर्स्ट एक कॉज है और सेकंड उसका इफेक्ट है। लिखना पड़ेगा यार तो, फर्स्ट कॉज सेकंड इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट कॉज है और सेकंड इफेक्ट है, ठीक है, या हाँ फर्स्ट कॉज है और सेकंड इफेक्ट है, जो लोग बोल रहे हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि भाई एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं इसलिए पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पा रही है। क्या ऐसा है कि विमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज बढ़ रही है इसलिए वो पुलिस जो है वो कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ पा रही है? ऐसा है? कहीं भी ऐसा लिखा है? कहीं भी ऐसा लॉजिकली से निकल के आता है डिडक्शन हमारा दैट पुलिस इज अनेबल टू, देयरफॉर वाला टेस्ट लगाते हैं हम, ठीक है, सो या देयरफॉर, ठीक है, there is increase in the atrocities against women, therefore police is unable to nab the culprits. कहीं ऐसा समझ में आता है हमें?
नहीं आता, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है ये, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। ठीक है, कि भाई इंसिडेंट्स बढ़ेंगे तो पुलिस पकड़ नहीं पाने से कोई संबंध नहीं है दोनों का आपस में, है ना। देयर मे बी अदर रीजंस जिस कारण से पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है, चलो, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट होता है कि भाई सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द, या फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेकंड को कॉज बोला है और फर्स्ट को इफेक्ट बोला है। चलो देखते हैं। तो पुलिस अथॉरिटी जो है वो कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ पा रही है, इसीलिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, पास्ट फ्यू मंथ्स में बढ़ी है। अब एक चीज देखो, एट्रोसिटीज हुई तब कल्प्रिट्स हुए और तब उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई। आई बात समझ में? एट्रोसिटीज हुई, उस कारण से कल्प्रिट्स बने वो लोग, और फिर उनको पुलिस नहीं पकड़ पाई है। तो इमीडिएट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है कि पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा इसलिए उन्होंने और एट्रोसिटीज की, मे बी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। If criminals exist and they aren't arrested or controlled, they will allow further crimes. ठीक है, possible, there is a possibility, but this is not an immediate possibility कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं तो उस वो जो है ना वो इमीडिएट पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं है कि जो नैब पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है इसीलिए वो क्राइम बढ़ रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू लुक फॉर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, जहां पे यू हैव टू फाइंड आउट इमीडिएट पॉसिबिलिटी। इमीडिएट पॉसिबिलिटी क्या होगी? इमीडिएट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई विमेन जो है दे आर नॉट कमिंग अप, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अपोज। ठीक है ना, विमेन आर नॉट बीइंग टॉट सेल्फ क्या बोलते हैं डिफेंस, ये सब चीज हो सकती है। ये रीजन हो सकता है, एक रीजन, ये एक कॉज हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, बट ये इमीडिएट कॉज नहीं है किसी चीज का। ठीक है ना, अगर इसकी जगह यहां होता दैट पुलिस अथॉरिटीज आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, है ना, कि भाई पुलिस जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभा रही है, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता तो ये इमीडिएट कॉज होता। ये कॉज है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, ये कॉज नहीं है, बट दिस इज नॉट द इमीडिएट कॉज जो हमें ढूंढना है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मतलब माइन्यूट डिफरेंस है इस चीज में कि एक दूसरा एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, पुलिस अब नहीं पकड़ रही है। ठीक है ना, तो अब जो क्राइम होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है ना, अब आगे क्राइम्स बढ़ेंगे उससे, अभी वाले जो बढ़ गए हैं वो इस कारण नहीं बढ़े। आई बात समझ में नीरज? एक चीज हम ध्यान से देखें कि एट्रोसिटीज हुई, कल्प्रिट बने, पुलिस नहीं पकड़ पाई। ठीक है, अब वो क्राइम करेंगे तो आगे रेट बढ़ेगी ना, बढ़ चुकी है का उससे कोई रिलेशन नहीं है। जो पहले रेट बढ़ी है, देयर हैज बीन अ हाई इंक्रीज इन पास्ट फ्यू मंथ्स, हम पास्ट फ्यू मंथ्स की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो अभी अगर नहीं पकड़ पाना इज नॉट द कॉज ऑफ एट्रोसिटीज इन पास्ट फ्यू मंथ्स, इट विल बी अ कॉज फॉर एट्रोसिटीज इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई तो आगे और बढ़ेंगी। ठीक है, जिन्होंने भी ये आंसर दिया कि सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट वन इज द इफेक्ट, उनको ये चीज समझ में आई कि ये पास्ट फ्यू मंथ्स की बात कर रहा है ना। देखो, पास्ट फ्यू मंथ्स में एट्रोसिटीज बढ़ी, ठीक है, पुलिस अब उन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, तो उससे क्या होगा, आगे एट्रोसिटीज बढ़ेंगी, राइट? अब आगे बढ़ेंगी, पास्ट फ्यू मंथ्स का इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, दो रीजन समझ में आ गए, तो इसमें ये दोनों का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है वो कोई और चीज का कॉज है दोनों। ठीक है, अंडरस्टूड? एक छोटी सी ट्रिक। हाँ सर, अगर जैसे स्टेटमेंट सेकंड है, इसके अंदर भी अपने ये पास्ट फ्यू मंथ्स वाली इस तरह की पुलिस वाज नॉट एबल टू अर्लियर, है ना, तो ये हो सकता था। अगर यहाँ पे अगर पास्ट की ही बात करते हैं, पुलिस वाज नॉट एबल टू, ठीक है ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैज नॉट बीन एबल टू, तो अभी नहीं पकड़े हैं अगर, तो आगे बढ़ेंगे। या तो इसमें फ्यूचर की बात होती, ठीक है, या फिर इसमें जो है वो पास्ट की बात होती। ठीक है, तो ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते इन दोनों के बीच में। ठीक है,
अंडरस्टूड? बहुत इजी है, तुम इसको ना वैसे जो मैंने जो बताया है ना वो तब अपने को यूज करना है जब हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है ना, हमारा लॉजिक दिमाग में ना आ रहा हो तो थोड़ी सी हम ट्रिक्स लेंगे कि भाई सो एंड देयरफॉर लगाएंगे, देखेंगे भाई सेम सब्जेक्ट है या नहीं, और उसको फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा दिमाग काम कर रहा है, वी आर एट पीस, ठीक है ना, और हमने कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं चल रही है, तो हम लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाएंगे और आंसर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, सबसे इजी पार्ट है ये और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और क्लैट में तो आता भी नहीं है। चलो मूव टू कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट assumptions, ठीक है। लेकिन एक अच्छा, किसी को कोई नोट्स वोट्स उतारने क्या, उसमें कुछ पूछना है पहले कॉज एंड इफेक्ट वाले में? कृतिका, चंचल, नीरज, साहिल, विहान, दुष्यंत, प्रियम, मनीषा, भूमिका, नुकुल, अक्षय, ट्विंकल, किसी को भी कुछ भी पूछना है? नहीं, चलो ठीक है, फिर विल मूव फॉरवर्ड। एक किसका मैसेज आया? चंचल, नो सर, थैंक यू वेरी मच चंचल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी हमने ट्रिक्स, ठीक है, हमने सीखी थी, इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, श्योर, जो भी हमने पीपीटी इसमें, ये क्या पीपीटी क्या है, हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो भी सीखा था और स्टेटमेंट असम्पशन में जो भी हमने सीखा था, जो ट्रिक्स लगाई थी, वो ट्रिक्स आज हमें यहां काम आएगी कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन जब भी हम डिराइव करते हैं किसी चीज का, तो हम ये देखते हैं कि थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, थर्ड पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट। केबीसी में एक्सपर्ट ओपिनियन वाला एक लाइफलाइन होती है, केबीसी में जब क्वेश्चन आता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन वाली लाइफलाइन होती है। तो अपने आप को कंटेस्टेंट भी समझना है और अपने आप को एक्सपर्ट भी समझना है, ठीक है, फिर डिराइव करना है हमें कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। चलो, हाँ, गैदर एवरीथिंग यू स्टडीड इन द लास्ट क्लासेस, ठीक है, और हमें ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं जो तो या तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे बिल्कुल, अगर सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब सॉल्व नहीं हो सकती वो प्रॉब्लम, तो मिनिमाइज कर दे, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, तो उनको मिनिमाइज कर दे, राइट। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेते, डायरेक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएंगे, ऐसा कुछ आज सच कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। तो देखो, पहली पहली ट्रिक जो हमने असम्पशन में कंक्लूजन में पढ़ी थी वो थी प्रैक्टिकलिटी, है ना। वी शुड स्टिक टू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? आई हैव फॉलन फ्रॉम स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से गिर गया हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए दोनों में से? एक क्वेश्चन आया है, आई विल आस्क ऑल यू गाइस, एक क्वेश्चन आया बहुत ही इंटरेस्टिंग कि सुशांत सिंह की डेथ में जो अगर इफेक्ट है तो क्या करण जौहर उसमें कॉज है? बताओ भाई, इसका आंसर बाद में करेंगे, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही करंट इफेक्ट, करंट अफेयर्स से बहुत रिलेट करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से। बताओ भाई, करण जौहर या नेपोटिज्म को हम डायरेक्ट कॉज सुशांत सिंह की डेथ का नहीं मान सकते। डायरेक्ट कॉज इज हिज इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, ठीक है ना, ही वाज डिप्रेस्ड, इसीलिए उसने सुसाइड की, तो दैट इज द कॉज। अब वो क्यों डिप्रेस्ड था, उसके 50 कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन का कॉज जो है वो नेपोटिज्म हो सकता है, डिप्रेशन का या नेगेटिव फीलिंग का कॉज नेपोटिज्म होगा, ठीक है। और डिप्रेशन जो है वो किसका कॉज होगा? वो डेथ का कॉज होगा। तो डेथ का इमीडिएट कॉज क्या हुआ? डिप्रेशन, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था समझ में आ गया अच्छे से? चलो गुड। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आई फॉलन फ्रॉम स्टेयर्स, अपने आप को अनम्यूट करो, किसको पूछूं मैं? ये पूछता हूं मैं,
मनीषा बताओ कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें? अब मुझे क्या करना चाहिए? इफ आई फॉलन फ्रॉम स्टेयर्स, I should get the first aid done. आई शुड गेट द फर्स्ट एड डन। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा मैं? तो depends on कितना लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अक्षय सेज 2, साहिल सेज बी, भूमिका सेज 2। ठीक है। अरे भाई फर्स्ट तो आंसर होगा ही नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं खुद गिर गया हूं मैं कैसे जाऊंगा हॉस्पिटल? ठीक है। फर्स्ट एड चलो घर में ही आसपास कहीं पट्टी वट्टी में कर लूंगा, या फिर किसी को आवाज लगा के आई विल गेट द फर्स्ट एड डन। वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करेंगे। आई विल गेट द फर्स्ट एड डन। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आ गया? चलो विल मूव टू द नेक्स्ट कि भाई सॉल्यूशन शुड बी रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम के रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी मतलब कहीं का भी सॉल्यूशन दे रहे हो। इकोनॉमी इज वर्स्ट हिट ड्यू टू लॉकडाउन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गवर्नमेंट शुड हेल्प फार्मर्स एंड पुअर पीपल। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इजियर लोन्स एंड रिलीफ। नीरज नीरज सेज नथिंग। साहिल बी किसका? अच्छा इसी क्वेश्चन का। चलो बी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू साहिल। नीरज सेज बी। और कोई जो ए बोल रहा हो रेज योर हैंड। जो बोल रहा हो इसका आंसर ए है या बोथ है? बोथ भी हो सकता है। अच्छा कृतिका सेज बोथ या ए? बोथ। बोथ ठीक है। विहान सेज बी। ए वाले बताओ। बी तो ठीक है, चलो बी तो दिख ही रहा है। कोई ऐसा है जो ए बोल रहा है? कृतिका बोल रही है बोथ ए एंड बी, बाकी कोई नहीं है। चलो वील सी। कृतिका लॉकडाउन है तो फार्मर्स और पुअर पीपल की हेल्प क्यों करनी है भाई? उनको खाना और देने के लिए to give them some food. उससे इकोनॉमी सही हो जाएगी। उनको फूड देंगे, उनको खाना देंगे, इकोनॉमी सही हो जाएगी उससे? नहीं होगी ना। इसीलिए इकोनॉमी की बात हो रही है ना यहाँ पे। देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ना। कभी भाई आप भगवान ऐसा करे, मतलब आप आरजीएस क्लियर करो, जज बनो आप लोग, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉब्लम देखोगे, ठीक है, उसके बाद आंसर रेलेवेंट उसका जो सॉल्यूशन है ना वो निकालोगे। भाई जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस बने, जिसको आरजीएस बनना है आरजीएस बने, लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। कल को भाई कोई केस आ ही जाए कि भाई इसने मर्डर किया, अब क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन तो आपको पता होना चाहिए ना अच्छे से, प्रैक्टिकली जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है ना। इसने मर्डर किया है तो इसके घर वालों को दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दो, विक्टिम के घर वालों को दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दो, तो विल दैट बी अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? प्रैक्टिकल तो विल दैट बी रिलेटेड विद द प्रॉब्लम? नहीं, कि हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? इसको जेल में डालना पड़ेगा। ठीक है। तो सेकंड वन इज द सॉल्यूशन व्हिच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि भाई लोन दें और रिलीफ पैकेजेस दें। जैसे अभी वो आत्मनिर्भर भारत वगैरह चल रहा है, तुम भी आत्मनिर्भर बनो। ठीक है। क्लासेस पे डिपेंड मत करो ज्यादा, क्लासेस कुछ नहीं है, क्लासेस मत लो और अपने आप पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी। ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ट्रिक। कौन आया? मैसेज इज सर रिलीफ पैकेज में फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या? वो गवर्नमेंट जाने। इकोनॉमी में किसको किसको प्रॉब्लम हुई है? विहान पूछ रहा है रिलीफ पैकेज में फर्स्ट ऑप्शन भी इंक्लूडेड होगा क्या? वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, देखिएगी। ठीक है ना, कि भाई इसमें डालना है भाई फार्मर्स को लोन देने हैं कि नहीं। इकोनॉमी में भी इकोनॉमी किस सेक्टर के कारण जो है इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है, तो वो सेक्टर पे फोकस करेगी। लेकिन फोकस कैसे करेगी? इजियर लोन और रिलीफ पैकेजेस से। ठीक है, वो इकोनॉमी में आएगा। नेक्स्ट इज इट शुड नॉट गिव बर्थ टू एनी अदर प्रॉब्लम। ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो जो दूसरी प्रॉब्लम को बर्थ दे। ठीक है, आई बात समझ में? देखते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी है, मान लो महेंद्र सिंह धोनी अच्छा नहीं खेला 2 मैच में, ठीक है,
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप रिद्धिमान साहा को महेंद्र सिंह धोनी की जगह ले आओ या ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी से वो कर दो, चेंज कर दो, ठीक है? उसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। ना वो रन बनाता है, ना विकेट कीपिंग अच्छी करता है, ठीक है? इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। वैसे ही ये क्वेश्चन है, रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन अ पर्टिकुलर हाईवे, तो पर्सनल मॉनिटरिंग बाय पुलिस शुड बी डन ऑन एवरी व्हीकल। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, पर्सनल मॉनिटरिंग ऑन एवरी व्हीकल। अगर पुलिस एक एक व्हीकल को रोक के पर्सनल मॉनिटरिंग करेगी, वो भी किस पे? हाईवे पे, तो क्या होगा? जैसे टोल पे लाइंस बनी हुई रहती है ना, उससे बड़ी बड़ी लाइंस जो है वो ट्रैफिक जैम की बनी रहेगी हाईवे पे, राइट? तो दिस विल, ऑल्दो दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कर सकती है पुलिस, ठीक है, बट दिस विल गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम, है ना? तो इसीलिए ये नहीं कर सकते। ट्रैफिक पुलिस शुड एंश्योर कंप्लायंस विद रोड सेफ्टी नॉर्म, हाँ ये कर सकते हैं, इससे दूसरे उसको वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। आपने देखा होगा हाईवे के साइड में एक ऐसे वैन सी खड़ी रहती है, हाईवे पेट्रोलिंग वैन, जिसमें कैमरा वगैरह लगा होता है, और उसपे वो स्पीड, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ कमिंग अप्रोचिंग व्हीकल, है ना? तो वो उससे सेफ्टी नॉर्म चेक करते हैं कि भाई स्पीड में लिमिट, स्पीड लिमिट के अंदर तो है, वो सब चीजें हैं, ठीक है? सीट बेल्ट तो लगा है उसमें ड्राइवर ने, और साथ में उसने लगा रखा है कि नहीं। तो दे शुड इंश्योर कंप्लायंस विद रोड सेफ्टी, कि भाई आप ट्रैफिक कंप्लायंस इंश्योर कैसे करोगे? आप फाइन्स बढ़ा दो, ठीक है? अभी जैसे फाइन्स बढ़ाए 5-6 दिन पहले गवर्नमेंट ने, है ना? तो वो सब इंश्योर कर सकते हो आप, बट एक एक व्हीकल को नहीं रोक सकते, ठीक है? तो एक ये ट्रिक हो गई। जो भी ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है, दैट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है? Next is a solution the outcome of which cannot be determined is always incorrect, ठीक है? कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका आउटकम आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो, वो हमेशा गलत होगा। कैसे होगा? जैसे कंपनी एक्स जो है, इट इज फेसिंग ह्यूज लॉस ड्यू टू मेनी कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, ठीक है? तो इट शुड गिव ह्यूज डिस्काउंट्स एंड फ्रीबीज टू द कस्टमर्स, और इट शुड स्टडी द मार्केट कॉम्पिटिटर्स एंड देयर स्ट्रेटजीज प्रॉपर्ली। अब अगर वो ह्यूज डिस्काउंट और फ्रीबीज देती है, एक तो पहले से ही लॉस में चल रही है, ठीक है? दूसरा, इसकी क्या श्योरिटी है कि डिस्काउंट और फ्रीबीज देने पे वो लोग उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लेंगे? ये भी हो सकता है कि भाई कंपनी का प्रोडक्ट ही अच्छा ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना? दिस इज वेरी अनसर्टेन, दिस थिंग इज वेरी अनसर्टेन। तो दिस कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन। प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचें, अगर हम किसी को बोलें कि भाई कंपनी में लॉस हो रहा है, क्या करें? कॉम्पिटिटर्स की वजह से लॉस हो रहा है, क्या करें? तो ये सीधी पहली बात यही बोलेगा कि आप कॉम्पिटिटर्स और मार्केट और उनकी स्ट्रेटेजी को स्टडी करो और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन लेके आओ। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहला यही होगा कि आप स्टडी करो, राइट? सो दिस इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? और कोई जिसको नहीं समझ में आया हो कुछ? चलो, विल मूव टू द नेक्स्ट। अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रैक्टिकल but requires huge resources is always incorrect, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूं कि there is a lot of traffic in the entire city of Jaipur, ठीक है? तो एक सॉल्यूशन आता है कि भाई सब जगह ओवर ब्रिजेस बनवा दो। क्या ये पॉसिबल है? बनाना पॉसिबल है, ओवर ब्रिज बनाना पॉसिबल है, बट इट विल रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेज, कि भाई बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड, है ना? तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एंड अ सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी हार्श इज ऑलवेज इनकरेक्ट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत हार्श हो, कि भाई जैसे कंपनीज जो हैं, ठीक है, वो कंपनी लॉ के नॉर्म्स फॉलो, एनवायरनमेंट के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही हैं। अगर कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग नॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या ये हो सकता है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको जेल में डाल दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फाइन लगा सकते हैं, कंपनी को बाइंड कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी कुछ हद तक कैंसिल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट पुट देम डायरेक्टली इन जेल, है ना? ये बहुत हार्श हो जाएगा। देयरफॉर सच सॉल्यूशंस आर आल्सो नॉट एप्रोप्रिएट। एग्जांपल लेते हैं दोनों का ही एक साथ। डीजल टैक्सीज आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। किस किसने ये प्रॉब्लम फेस की है? हम तो जनरली फेस करते ही हैं, है ना? कि जो डीजल टैक्सी, नॉर्मल जो टैक्सी चलती हैं, ऑटो चलते हैं, वो साहिल हैज रेज्ड हिज हैंड, हाँ हमने भी फेस किया। तो वो जो है वो नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत कर रही हैं, ठीक है?
अब इसका सोल्यूशन क्या है? डीजल टैक्सी शुड बी बैंड, एक गवर्नमेंट शुड रिप्लेस द डीजल टैक्सीज विद इलेक्ट्रिक वंस, ठीक है, और तीसरा है इंसेंटिव शुड बी गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल टैक्सीज विद क्लीनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तीनों में से कौन से सॉल्यूशंस या कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है? देखो एक बार खुद ट्राई करो। चंचल says third. C. Manisha and Twinkle C. Kritika C. Sahil C. Third. Bhumika says C. Akshay says C. Vihan C. Nukul says C. अब और कौन बचा? प्रियम, दुष्यंत, सब C. नीरज का नहीं आया अभी भी। नीरज बचा। नीरज, व्हाट इज योर आंसर? चलो देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो सकता है। एक, डीजल टैक्सी शुड बी बैंड। हाँ, नीरज बोल रहा है क्या? नहीं, नीरज कुछ नहीं बोला। साहिल बोल रहा है सर फिफ्थ बताना एक बारी ट्रिक। फिफ्थ इज नॉट अ ट्रिक। चलो देखते हैं, इसी में देखते हैं ना, इसी में फिफ्थ वाला भी देखेंगे, ठीक है साहिल? चलो देखो, डीजल टैक्सी शुड बी बैंड। अब तुम अगर डीजल टैक्सी बैन करोगे तो क्या होगा? तो जो टैक्सी चला रहे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? दे आर पुअर पीपल, राइट? हम नॉर्मली सोचेंगे तो दे आर पुअर पीपल, और ये बहुत ही हार्श एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। बैन कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो, जेल में डाल दो, मार दो, पीट दो, इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं दे आर वेरी हार्श। जहां ऐसे वर्ड्स हो ना, वहां बहुत कॉशन से हमें देखना चाहिए कि किस चीज को बैन करने की बात कर रहा है। अगर नेगेटिव चीज ही है और उसको बैन करने की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उसको बैन करने की बात कर रहा है, तो इट इज ओके। जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग शुड बी बैंड, वो चलेगा बहुत, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है। लेकिन डीजल टैक्सी उतनी नेगेटिव नहीं, ग्रेविटी उसकी इतनी नहीं है, तो यू शुड नॉट आउटराइटली बैन डीजल टैक्सीज, है ना? तो दिस विल गिव दिस विल जर्मिनेट अनदर प्रॉब्लम कि भाई वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, फिर दे डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू बाय अदर टैक्सीज, राइट? कि भाई सीएनजी वाली या वो इलेक्ट्रिक टैक्सी उन्होंने खरीद ली, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, तो ये सॉल्यूशन नहीं बैठता। गवर्नमेंट शुड रिप्लेस ऑल डीजल टैक्सीज विद इलेक्ट्रिक वंस। ऑल कितनी होती है? मतलब अगर बीकानेर जैसे छोटे शहर की बात करें तो वी हैव मोर देन 10,000 डीजल टैक्सीज इन बीकानेर एज पर दी आरटीओ रिपोर्ट, ठीक है? मोर देन 10,000 अगर टैक्सीज हैं और गवर्नमेंट सबको रिप्लेस करेगी तो देयर विल बी इनकरिंग ऑफ ह्यूज एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। ऑल्दो प्रैक्टिकल है, आप कर भी सकते हो रिप्लेस, सबको बुला के आप कह भी सकते हो ले जाओ, बट रिसोर्सेज बहुत लगेंगे, और जहां रिसोर्सेज बहुत लगेंगे वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ना? गवर्नमेंट के पास वैसे ही डर्थ ऑफ रिसोर्सेज है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। साहिल समझ में आया? फिफ्थ वाला पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हाँ, इंसेंटिव शुड बी गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल टैक्सीज विद क्लीनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंसेंटिव जैसे आपने लोन दे दिया विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, या आपने सब्सिडी दे दी उन लोगों को कि भाई आप 50,000 की इलेक्ट्रिक रिक्शा है तो आप उसको 30,000 में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, ये कर दो। इंसेंटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, तो इट इज अ वेरी लाइटर सोल्यूशन जिससे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही और फिनेंसेस पे भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो है वो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? नीरज, नो रिएक्शन फ्रॉम हिज साइड। देखते हैं। इंसेंटिव विल आल्सो कॉस्ट ह्यूज रिसोर्सेज दो लेस देन रिप्लेसमेंट विद इलेक्ट्रिक। देखो, दे विल कॉस्ट रिसोर्सेज, कोई भी सॉल्यूशन होगा ना, इट विल कॉस्ट रिसोर्सेज, बट ह्यूज रिसोर्सेज कॉस्ट नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हो? आप उनको 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है? तो आपका लोन तो वापस आएगा ही ना, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, विच इज वेरी लेस ऑफ रिसोर्स एज कंपेयर टू रिप्लेसिंग एवरीथिंग।
या गिविंग देम फ्रीली द टैक्सीज, ठीक है ना। वो रिसोर्सेज तो हर सॉल्यूशन में लगेंगे, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन अगर गवर्नमेंट करेगी तो उसमें रिसोर्सेज तो लगेंगे, एक्सेप्ट लोगों को बोल देना कि आत्मनिर्भर हो जाओ, उसमें कोई रिसोर्स नहीं लगेगा, लोग अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, इसमें इतने रिसोर्स नहीं लगेंगे जो बहुत इम्प्रैक्टिकलिटी की तरफ चला जाए, ठीक है। जैसे हम बात करें, चलो एक केस हम बीकानेर का ही लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बीकानेर से बाहर गया है और हु इज नॉट अवेयर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बीकानेर। कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, वो रेलवे क्रॉसिंग के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कोटगेट रेलवे क्रॉसिंग के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक कि वहां पे आप अंडर ब्रिज बनाओ, ठीक है, अंडर ब्रिज पता है सबको क्या होता है, ठीक है। दूसरा वहां पे आप क्या करो, दूसरा वहां पे आप ओवर ब्रिज बनाओ, ठीक है। तीसरा आप वहां पे स्टेशन वहां से हटा के और कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है। और चौथा आप ट्रेन्स को जो डायरेक्ट आने वाली मतलब वो लाइन क्रॉस करने वाली ट्रेन्स हैं उनको दूसरे रूट से ले आओ, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन हमारे पास हैं। तो इसमें मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है, प्लॉजिबल सॉल्यूशन, वो क्या हो सकता है? प्रियम, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जल्दी बताओ, वी डोंट हैव टाइम। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, शिफ्टिंग ऑफ स्टेशन, shifting of routes for a few trains. So shifting of routes. शिफ्टिंग ऑफ रूट्स मतलब रेलवे लाइन कहीं और लगा दो, ठीक है। और कोई? कृतिका? Shifting of routes. शिफ्टिंग ऑफ रूट्स। साहिल? ओवर ब्रिज, ठीक है। नुकुल? सर ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज, ये लोग लड़ाई करवाएंगे। हाँ भाई, अक्षय से अंडर ब्रिज, ठीक है। और मनीषा? Sir, under bridge. अंडर ब्रिज, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं विहान, तो विहान और दुष्यंत दोनों बता दो, तुम भी बता दो। सर ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज में जो ज्यादा सस्ता है वो। जो ज्यादा सस्ता है वो, चलो ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। दुष्यंत बता दिया क्या? देखते हैं दुष्यंत से शिफ्टिंग ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस पे। देखो इसमें क्या होगा कि व्हेन यू टॉक अबाउट अंडर ब्रिज, तो आपने नोटिस किया होगा सारे शहर का पानी कोटगेट में जाता है जब बारिश आती है, ठीक है। एंड देयर आर वाटर सीवरेज लाइंस और बाकी सारी बहुत सारी लाइंस है जो उसके नीचे है, ठीक है। प्लस अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज दोनों ही, उन दोनों को एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, ठीक है ना, बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर आप ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाते हो तो या तो कोर्ट गेट को हटाओगे आप, ठीक है, अपनी जगह से, फिर ऊपर से ऐसे लेके आओगे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज। अदरवाइज इट विल गिव राइज टू अदर प्रॉब्लम्स कि भाई आप अंडर ब्रिज बना रहे हो, बारिश में ऐसे लोग तैरते हुए उसके अंदर से जा रहे हैं, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मॉनसून में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बोट्स और छोटी छोटी शिप्स हो जाएंगी और बाइक्स वगैरह हट जाएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन उस हिसाब से नहीं है, ठीक है ना, इट विल गिव राइज टू अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा शिफ्टिंग ऑफ स्टेशन जो है, इट विल रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेस, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, पूरा स्टेशन शिफ्ट कर दो आप कहीं पे। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? इसका पॉसिबल सोल्यूशन है कि कुछ ट्रेन जो पास हो रही है वहां से, ठीक है ना, उनको ऑल्टरनेटिव रूट पे डाल के आप दूसरे रास्ते से ले आओ। उससे नुकसान नहीं, क्योंकि दूसरा रास्ता आपके पास अवेलेबल है, अगर, है ना, आप ये बात कर रहे हो दूसरा रास्ता अवेलेबल है तो आप उनको दूसरे रूट से ले आओ, राइट। तो उसमें सबसे कम नुकसान होगा, मिनिमाइज द प्रॉब्लम, ठीक है, इट विल मिनिमाइज द प्रॉब्लम। ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज आप बनाओगे, मार्केट सारा इफेक्ट होगा, उसकी कॉस्ट अलग है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको किसी को डाउट है कोई? यस सर। कौन है? विहान बोलो।
जैसे आपने कहा वो शिफ्टिंग ऑफ रूट्स कर दिया जाए, हाँ तो सर वो जो ट्रेन है वो अगर दूसरे रूट्स में चलेगी तो वहाँ पे वो जिस रूट में चलेगी दिक्कत तो वहाँ पे भी होगी लोगों को। रूट पे ट्रेन चलने से कहाँ दिक्कत होगी? कोर्ट गेट में फाटक बंद होता है, फिर उसमें लोगों को दिक्कत होती है। अगर वो ट्रेन दूसरी जगह से चलेगी तो वहाँ पे फाटक बंद होगा, वहाँ लोगों को वहां तो दिक्कत पहले से रूट है ना भाई। अगर ट्रेन जो है वो किसी हाईवे को क्रॉस कर रही है, वहां रेलवे अगर वो मतलब क्रॉसिंग अगर बंद होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी वो होती है। मिनिमाइज द प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब अपने पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो 100% ऐसे फुल प्रूफ हो, ठीक है? तो ये सोल्यूशन मिनिमाइज करता है। दूसरा, कोर्ट गेट पे इतनी स्पेस नहीं है कि आप वहां पे ओवरब्रिज बना सको, ठीक है? वहां पे स्पेस नहीं है। जहां दूसरे रास्ते से निकलेगी, हाईवे से निकलेगी, कहीं और से निकलेगी, वहां तो स्पेस होगी ओवरब्रिज बनाने की, तो वहां आप ओवरब्रिज बना सकते हो, है ना? तो इसलिए दिस इज द मोस्ट प्लॉजिबल सोल्यूशन, ठीक है? अब ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप करने हैं। विल एंड दिस क्लास हियर। अभी किसी को समझ में आया? मतलब समझ में नहीं आया, डाउट्स हैं किसी को तो बताओ। नहीं है? सो दिस इज आवर लास्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली, until unless I am forced to take more classes, ठीक है ना? तो ये लास्ट क्लास है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पढ़ रहे हो आप रीजनिंग, तो हम डाउट सेशन जो है वो संडे को लेंगे, ठीक है? अब वो डिसाइड करेंगे सर कि भाई डाउट सेशन एक साथ लेना है या अलग अलग लेना है, जो भी है, ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके बाद देखते हैं, ठीक है? चलो गाइस, और कोई आपका फीडबैक हो कि सर ये चीज और पढ़ानी थी, ये तो रहेगी, ये भी रह गया, वो भी रह गया, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप बता सकते हो कि सर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये वापस पढ़ाओ, सर आपको ये चीज पढ़ानी नहीं आती, ये बोल दिया सोच लेना आगे क्लास नहीं लगवाने वाली। हाँ, मतलब कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, जो भी है, ठीक है ना? तो वो तुम बता सकते हो। और जो चीज नहीं सही समझ में आई है या नहीं पढ़ाई है वो भी तुम बता सकते हो कि सर ये वाकई में आपने जो समझाया मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन का कि अगर किसी को ट्रिब्यूट देना हो तो इज इट अ गुड सॉल्यूशन टू कंस्ट्रक्ट अ स्टैच्यू, कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू उसके नाम पे बनवा दो? तो मेरे को देना हो तो तुम बनवा सकते हो, वेरी प्लॉजिबल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है? उसके अलावा एक ये प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिब्यूट देना इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ट्रिब्यूट देना प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिब्यूट देना इज जनरली क्या बोल सकते हैं इसको, एक इच्छा है, इच्छा है अपनी, ठीक है? मेरे को ट्रिब्यूट देना है किसी को, मेरा मन करेगा मैं स्टैच्यू बनवाऊंगा, मेरा मन करेगा मंदिर बनवाऊंगा रजनीकांत का, मेरा मन करेगा मैं भाई कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करूंगा, तो ठीक है यार, अब होता रहता है ऐसे, तो आते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा कभी भी ऐसा हो कि सर को ट्रिब्यूट देना है और स्टैच्यू बनवाना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? चलो, we'll end this meeting here. Thank you very much guys. Bye bye.